Yes, this is the chapter 2 of class 12, inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function. We are going to start with this chapter. Then if f is a function 1 1 and onto, if f is 1 onto, then f inverse exists. Then f inverse means inverse of the f inverse. Then inverse of f exists, and it is denoted by f inverse. If f is 1 and onto, if f is 1 and onto, में f को 1 भी होना चाहिए और onto भी होना चाहिए, then inverse of f exist करेगा. The inverse of the function f inverse exist करेगा, and this will be unique function. This will be unique function. f inverse unique function होगा, and it is denoted by f inverse. If we have f is a function from x to y such that fx is equal to y. If we have a function f from x to y such that fx is equal to y, ये x कौन सा है? इसका एलिमेंट है. ये y कौन सा है? इसका एलिमेंट. यह x जो है इसके डोमेन का एलिमेंट है, इस x का एलिमेंट. यह y किसका एलिमेंट है? इसके को डोमेन का एलिमेंट. If f is a function from x to y such that fx is equal to y, then f inverse is a function from y to x. Then f inverse is a function from y to x such that f inverse y, देखिए ये f इधर आया तो f inverse y हुआ. Then f inverse y is equal to x. इस f को हम इधर लाए तो f inverse y, तो क्या बचा? f inverse y is equal to x. Then f inverse y is equal to x. यह y किसका है? ये y इसका एलिमेंट. यह x किसका एलिमेंट है? इसका एलिमेंट. f इनवर्स के इसके जो मुंह में है इसके डोमेन का एलिमेंट है, और ये जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है इसके रेंज का एलिमेंट. यहां जो f के मुंह में है इसके डोमेन का एलिमेंट है, और ये जो y आ रहा है इसके रेंज का एलिमेंट है या वो डोमेन का एलिमेंट है. Then we can say that domain of f inverse, domain of f inverse is equal to y, and this is what? Range of f. Range of f है. डोमेन ऑफ f इनवर्स y है और ये y क्या है? रेंज ऑफ f है. सिमिलरली रेंज ऑफ f इनवर्स क्या है? रेंज ऑफ f इनवर्स इज x, और यह x क्या है? डोमेन ऑफ f है. सो दिस इज डोमेन ऑफ f. So we can say that if f is a function from x to y, then f inverse is a function from y to x. Then what will be? Domain of f inverse will be range of f. यहाँ जो f inverse का डोमेन होगा f का रेंज होगा. यहाँ जो रेंज होगा f inverse का डोमेन ऑफ f होगा. Now
we will discuss about the sine function. As we know, sine function domain is all real number and its range is -1 to 1. Sine function domain is all real number and range is -1 to 1. Then this is not 1 1 on 2. Generally, trigonometric functions are not 1 1 on 2. Generally trigonometric functions are not 1 1 on 2. Not 1 1 on 2. क्यों होगा? क्योंकि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2. और ये साइन 150 का भी वैल्यू है, साइन 150 डिग्री का भी वैल्यू है. और इसमें 3/360 ऐड कर दीजिए, उसका भी वैल्यू है. उसी तरह से साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू है √3/2, वह किसका वैल्यू है? साइन 120 का भी वैल्यू है. सो साइन फंक्शन यहां पर क्या हो रहा है? साइन 30 का भी वैल्यू 1/2, साइन 150 का भी वैल्यू 1/2. तो ये क्या होगा? मेनी वन फंक्शन होगा, 1 1 फंक्शन नहीं होगा. देन इट इज नॉट 1 1 on 2. Generally, trigonometric functions are not 1 1 on 2. But if we restrict their domains, then it may be 1 1 on 2. यदि हम इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करें, then it may be 1 1 on 2. अभी हमने क्या देखा कि साइन 30 डिग्री का भी वैल्यू 1/2 और साइन 150 का भी 1/2, साइन 60 का भी √3/2, साइन 120 का भी √3/2. तो ये साइन फंक्शन मेनी वन फंक्शन है. उसी तरह से कॉस में भी कॉस का कोई भी वैल्यू ले लीजिए. जो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होगा 1 होगा. अब फिर कॉस 360 का वैल्यू 1 ही आएगा. फिर कॉस 720 का वैल्यू 1 ही आएगा. इसका मतलब कॉस भी मेनी वन फंक्शन है. देन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट 1 1. इफ वी रेस्ट्रिक्ट देयर डोमेन्स, then it may be 1 1 on 2. Then if we restrict its domain -π/2 से π/2 and range is -1 to 1, then it will become a 1 1 function. Then this sine function will become a 1 1 function. Actually, we can restrict sine function to -3π/2 to -π/2 और -π/2 to π/2 और π/2 to 3π/2 and its range is -1 to 1. इसमें से कोई भी डोमेन ले, देन साइन फंक्शन इज 1 1. ये इसमें से कोई भी हम डोमेन ले, यदि साइन फंक्शन को इसमें से किसी के लिए रेस्ट्रिक्ट करें
and range is -1 to 1, then sine function will be 1 1. Then we can say that sine inverse function will be sine inverse function whose domain is -1 to 1, and range is any of these 3 pi by 2, any of these 3 intervals, -3 pi by 2, so minus pi by 2, minus pi by 2, 2 pi by 2, or pi by 2 to 3 pi by 2. इसमें से कोई भी साइन इनवर्स फंक्शन का या डोमेन हो -1 से 1, और देन इसमें से कोई भी रेंज होने पर साइन फंक्शन, ये साइन का साइन इनवर्स फंक्शन होगा, मींस साइन फंक्शन इस कंडीशन में 1 1 on 2 है, देन साइन इनवर्स फंक्शन विल एग्जिस्ट एंड साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन होगा -1 से 1, और इसमें से कोई भी इंटरवल इसका रेंज होगा. Sine function is 1 1 on 2 if we restrict any of these intervals, and -1 to 1 is the range, then sine function will be 1 1 on 2. Then its inverse will exist for the domain -1 to 1, for the interval -1 to 1, and any one of its range. But this one is called principal value branch. ये इसका branches है, all 3 are called branches, but this one is called principal value branch. Means sine inverse function will be -1 to 1 to minus pi by 2 to pi by 2. मीन्स इस साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन होगा -1 से 1, और रेंज क्या होगा -π/2 से π/2. सिमिलरली कॉस फंक्शन को यदि हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं, यदि हम कॉस फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट करें, cos function is restricted to any of this -π/2, -π to 0, 0 to pi, or pi to 2 pi, and range is -1 to 1, then cosine function will be 1 1 on 2. यदि हम cos फंक्शन को इसमें किसी पर भी हम रेस्ट्रिक्ट करें तो ये cos फंक्शन 1 1 फंक्शन कहलाएगा. Then it will be not only 1 but on 2 also. So cos inverse function, we can say that cos inverse function will be -1 to 1, and its ranges will be -π/2, pi to 0, 0 to pi, और pi to 2 pi. इसमें से कोई भी इसका रेंज हो सकता है, लेकिन हम इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं. इसमें से कॉस इनवर्स का तीनों में से कोई भी ब्रांचेज होगा, कोई भी इंटरवल्स ब्रांचेज होगा, बट दिस विल बी द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. सिमिलरली जिस तरह से साइन इनवर्स में ये 3 में से कोई भी रेंज हो सकता है, मीन्स कोई भी ब्रांचेज हो सकता है, लेकिन इसको बीच वाले को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे. सिमिलरली कॉस इनवर्स में इस 3 में से कोई भी हो सकता है, लेकिन बीच वाले को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे, इसको 0 से पाई वाले को. मीन्स cos inverse function will be -1 to 1
0 to pi means domain will be -1 to 1 and range will be 0 to pi. अब देखिए इस ब्रांच को कैसे मिल रहा है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में देखिए कि इस दोनों का डिफरेंस पाई का है, ठीक है। तो हम इसमें से पाई माइनस कर दिए तो माइनस पाई का, इसमें से पाई को माइनस कीजिए तो -3 पाई/2 होगा। तो यदि क्वेश्चन ये कहता है कि अदर ब्रांचेस, फाइंड द अदर ब्रांचेज ऑफ साइन इनवर्स अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यदि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अलावे कोई ब्रांच निकालना है साइन इनवर्स का, तो क्या करेंगे, इस दोनों के बीच में देखिए पाई का डिफरेंस है, तो हम इधर पाई माइनस कर लिए तो -3 पाई/2 आया। फिर इसके आगे क्या होगा, तो पाई/2 में पाई ऐड कर दिए तो पाई/2 से 3 पाई/2 हो गया। उसी तरह से इसमें देखिए पाई का डिफरेंस है, तो इससे पहले का ब्रांच क्या होगा, तो 0 में पाई माइनस कर दीजिए तो -पाई से 0। इसके आगे वाले में क्या होगा, तो पाई में पाई ऐड कर देते पाई से 2 पाई होगा। नाउ वी विल टेक yes now domain and range of trigonometric functions। साइन फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। इस टेबल को हम लोग स्टडी किए थे क्लास 11 में। डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एंड रेंज इज -1 से 1। कॉस फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज इज -1 to 1। tan फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर, 2n + 1 ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 को छोड़कर। क्यों ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 को छोड़ते हैं, क्योंकि tan थीटा = sin थीटा बाय cos थीटा, और cos आपका पाई/2 cos पाई/2 = 0 होता है, cos 90 डिग्री 0। तो यहां पर पाई/2 लीजिएगा तो 0 हो गया, देन tan इज नॉट डिफाइंड। तो केवल पाई/2 पर ही नहीं, 2n + पाई मीन्स ± पाई/2 पर, 3 ± 3 पाई/2 पर, ± 5 पाई/2 पर, ± 7 पाई/2 पर, ये सब पर tan डिफाइंड नहीं होगा। इसलिए रियल नंबर में से इसको छोड़कर, मीन्स ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 को छोड़कर, 2n + 1 है, 2n + 1, 2n इज इवन, +1 तो इवन +1 ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 को छोड़कर, 1 पाई/2 को छोड़कर, 3 पाई/2 को छोड़कर, 5 पाई/2 को छोड़कर, 7 पाई/2 को छोड़कर। तो पाई/2 को छोड़ेंगे तो -पाई/2 को भी छोड़ना होगा, +3 पाई/2 को छोड़ना है तो -3 पाई/2 को भी छोड़ना है, 5 पाई/2 को छोड़ना है तो -पाई/2 को भी छोड़ना है। यहाँ जो n है, n इज इंटीजर, n इंटीजर है, ठीक है। देन डोमेन इज ऑल रियल नंबर, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 को छोड़कर, देन रेंज विल बी ऑल रियल नंबर। कॉट का रेंज डोमेन इज ऑल रियल नंबर, x = n पाई को छोड़कर। n पाई क्यों कहता है, कॉट को देख लीजिए, देन कॉट = cos बाय साइन, कॉट थीटा = cos थीटा बाय साइन थीटा। साइन 0 डिग्री कितना होगा, 0, साइन पाई डिग्री, साइन पाई 0 होगा, तो n पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, -1 पाई, इस सब पर 0 पर, ± पाई पर, ±2 पाई पर, ±3 पाई पर, ±4 पाई पर, सबको छोड़कर, इस सब पाई के मल्टीपल्स को छोड़कर कोई भी रियल नंबर डोमेन हो सकता है, लेकिन रेंज होगा ऑल रियल नंबर। देखिए किसको छोड़ रहे हैं, कॉट में n पाई, 1 पाई, 0 को छोड़िए सबसे पहले। क्यों हो रहा है, cos थीटा बाय साइन थीटा है, साइन 0 डिग्री, यहाँ 0 रखिएगा तो 0 आएगा, पाई रखिएगा तो 0 आएगा, -पाई रखिएगा 0 आएगा। इसलिए n पाई को छोड़कर ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या होगा,
तो ऑल रियल नंबर होगा। सेक में ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 को छोड़कर, कारण वही है सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा के कारण इसको 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को छोड़ना पड़ता है। सेक थीटा को आप क्या लिखते हैं, सेक थीटा इज 1 बाई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहां पर पाई बाई 2 होगा, कॉस पाई बाई 2 जीरो होता है, कॉस 90 डिग्री जीरो होता है। तो जीरो यहां होने पर ये सेक डिफाइन नहीं होगा, तो जीरो पाई बाई 2 पर ही नहीं, प्लस माइनस पाई बाई 2, प्लस माइनस 3 पाई बाई 2, प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 और मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 को छोड़कर, रियल में से ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 को छोड़कर ये डोमेन होगा। रेंज क्या होगा, तो ऑल रियल नंबर्स, लेकिन -1 और 1 के बीच के रियल नंबर्स को छोड़कर, -1 और 1 रेंज में -1 और 1 के बीच का रियल नंबर्स नहीं आएगा सेक में। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच का रियल नंबर छोड़कर। कॉसेक में क्या है, ऑल रियल नंबर n पाई को छोड़कर, मीन्स जीरो नहीं ले सकते हैं, यही है कॉसेक का क्यों है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन पाई इज इक्वल टू 0, साइन माइनस पाई इक्वल टू 0। तो इसके कारण n पाई को छोड़ना पड़ता है। तो ऑल रियल नंबर n पाई को छोड़कर, मीन्स 0 को छोड़कर, 1 पाई को छोड़कर, माइनस पाई को छोड़कर, 2 पाई को छोड़कर, -2 पाई को छोड़कर, 3 पाई को छोड़कर, -3 पाई को छोड़कर, लाइक दिस। और रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर -1 से 1 के बीच वाले नंबर को छोड़कर, दिस इज द रेंज। ये हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे। अब क्या है कि इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन क्या होगा, जो यहाँ रेंज था वही देखिए यहाँ डोमेन है। साइन का रेंज क्या है, -1 से 1। साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, -1 से 1। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चेंज इसलिए किया है कि प्रिंसिपल वैल्यू ये ब्रांच जब तक चेंज नहीं कीजिएगा, ये 1 1 और 2 नहीं हुआ, मीन्स ये जब तक आप इसका डोमेन नहीं रखते हैं, इसका डोमेन ये होना चाहिए, तभी 1 1 और 2 होता है। तो -π/2 से π/2 के लिए ये 1 1 और 2 होता है, इसलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 होगा। मतलब साइन इनवर्स का डोमेन हो गया -1 से 1 और रेंज हो गया -π/2 से π/2। इसी को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। बाकी जो उधर समझाया है, रेस्ट जो इसके आगे पीछे था उसको ब्रांचेज, अदर ब्रांचेज बोलते हैं। कॉस इनवर्स डोमेन क्या होगा, -1 से 1 और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई। देख लीजिए यहाँ जो रेंज है यहाँ डोमेन है। tan इनवर्स में डोमेन क्या होगा, यहाँ देखिए tan का रेंज क्या है, रियल नंबर, यहाँ डोमेन रियल नंबर होगा। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसका जो होगा ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, यहाँ क्लोज इंटरवल है, इसमें भी क्लोज इंटरवल में, इसमें ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। π/2 पर tan डिफाइन नहीं रहता है, इसलिए इस दोनों को नहीं लेना है, इसके बीच के नंबर रेंज में आएंगे। कॉट इनवर्स ऑल रियल नंबर डोमेन होगा। रेंज क्या होगा, 0 से पाई, यहां से याद रखिए कॉस में क्लोज इंटरवल है, कॉट में ओपन इंटरवल है, 0 से पाई। कॉट देखे हैं 0 से पाई में डिफाइन है, यहाँ एंगल ही छोड़ दे रहा है एल पाई, तो इसलिए 0 से 0 और पाई इसमें आएगा नहीं, तो 0 से पाई नहीं लेना है। 0 से पाई के बीच का जो वैल्यू होगा दैट विल बी द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा। सेक इनवर्स में यहां देखिए सेक का क्या है, आर ऑल रियल नंबर, -1 से 1 के बीच के रियल नंबर्स को छोड़कर। तो सेक इनवर्स में ऑल रियल नंबर -1 से 1 के बीच के रियल नंबर्स को छोड़कर डोमेन है। रेंज क्या होगा, 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई, लेकिन π/2 को छोड़कर सेक में π/2 डिफाइन नहीं है। देखिए यहां से π/2 के लिए ये डिफाइन नहीं रहता है, यही नहीं लेता है π/2 एंगल, इसलिए यहाँ π/2 नहीं लेंगे। 0 से पाई के बीच का वैल्यू होगा, 0 से 0 भी होगा, पाई भी होगा, लेकिन उसके बीच में π/2 नहीं होगा। यहां से याद रखना है क्योंकि सेक π/2 पर डिफाइन नहीं है, इसलिए π/2 इसके रेंज में नहीं आएगा, सेक इनवर्स के रेंज में नहीं आएगा π/2।
उसी तरह से कोसेक इनवर्स का डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, -1 से 1 के बीच के रियल नंबर को छोड़कर। लेकिन इसका रेंज क्या होगा, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 जो साइन का है, लेकिन इसमें 0 को छोड़कर। क्यों 0 को छोड़कर, यहां देखिए डोमेन में ही 0 नहीं लिया है, 0 को छोड़कर, ऑल रियल नंबर 0 को छोड़कर, तो इसमें से 0 हटा देना है। -π/2 से π/2 के बीच का ऑल रियल नंबर छोड़ा रेंज में, लेकिन 0 नहीं होगा। देन दिस इज द concept of inverse trigonometric function. Next day we will do the questions related to inverse trigonometric function. Thank you for watching the video.